Good morning students. Today we are going to start our next chapter number 11, perimeter and area of class 7. First of all, we will discuss about the formulas of this chapter. Here we have shapes, then we will write area and then perimeter. First shape is sphere. Sphere means all sides are equal. Area is equals to side into side. Side is equals to A, that's why we have written here A into A. Next is perimeter. Perimeter formula is 4 into side. Side is equals to A, that's why 4 into A. Next shape is rectangle. Length and breadth is given, so area is equals to length into breadth. Next is perimeter. Perimeter 2 multiply length plus breadth. Next shape is circle. This is the center and radius we have r. So area of circle is equals to pi r square and perimeter of circle is equals to 2 pi r. Where pi is equals to 22 by 7 or 3.14. According to question we will put the value of pi. And here circle, perimeter of circle and circumference of circle both are equal. Sure. Next shape is triangle. So area of triangle is 1 by 2 base into height. Here is base and this is the height of the triangle. And perimeter sum of the three sides. Like first side, second side and this is the third side. This is A, B and C. Sum of three sides A plus B plus C. And next we have parallelogram. This is the base of the parallelogram and this is the height of parallelogram. Area of parallelogram base into height and perimeter same as rectangle 2 into L plus B because parallel sides are equal. These are the formulas of chapter number 11. Now we will start our exercise 11.1. Our first question is the length and the breadth of the rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find part 1 its area and part 2 cost of the land if 1 square meter cost rupees 10,000. So first of all we will solve first part area. So length of rectangular piece of land that is given 500 meter and breadth of rectangular piece of land that is given 300 meter. So area of rectangular piece, area of rectangle as we know length into breadth. Length 500 meter and breadth we have written 300 meter. So when we have multiplied, so answer is 1,50,000 meter square. Area always in meter square, square units, in square units also. Next second part we will solve the cost. Second part cost. They have given cost of 1 meter square rupees 10,000 and we have to find cost of 1,50,000 meter square. So we have multiplied this by this equals to required answer. So this is our question number 1. Next we will do our question number 2. Next our second question is find the area of a square park whose perimeter is 320 meter. अब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का. पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है. इन क्वेश्चंस में अगर पेरीमीटर गिवन हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकालना है. अगर एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला निकाल के आगे पेरीमीटर निकालेंगे. अब यहाँ पेरीमीटर दे रखा है ऑलरेडी तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. किसका? स्क्वायर का पेरीमीटर. वो क्या होता है हमारे पास 4 इंटू साइड और ये 320 पहले से ही मेरे पास गिवन है. अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क जो गिवन दे रखा है दैट इज 320 मीटर. लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क का 4 इंटू साइड. ये हमने यहीं पे लिख लिया इक्वल्स टू 320 ऑलरेडी गिवन है तो साइड 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. उस साइड जाके क्या होगा हमारे पास डिवाइड. ये हो गया मेरे पास 80 तो साइड इज इक्वल्स टू 80 मीटर. अब ये हमारे पास साइड आ गई तो एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास साइड इनटू साइड.
that is 80 into 80 मीटर मीटर 8 8 6400 मीटर स्क्वायर। और ये स्क्वायर का एरिया हमेशा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स में आता है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज करके हमने वहाँ से साइड निकाली थी। अब यहाँ पे भी हम एरिया का फॉर्मूला यूज करके ब्रेथ निकालेंगे और बाद में उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे उसने हमें दे रखा है, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले वो हमें लेट करना है, बी। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज गिवन 22 मीटर। नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट that is given 440 meter square. Now area of rectangular plot formula is length into breadth is equals to 440, as it is length 22 meter given and breadth we have taken b 440 meter square. 22 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 440 by 22, this is meter square and here is meter. So 22 की कटिंग करके मेरे पास आया 20 मीटर। ये हमारे पास आ गई ब्रेथ। अभी हमें उसने बोला है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 into L plus B। 2 as it is, L given 22 and breadth we have find out, so this is 42, this is 84 meter answer. Next is question number 4, the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter। अब यहाँ फिर से आपको perimeter given है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 होगा, बस फर्क यहाँ पे ये, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे अब क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया। Length is given, find its breadth and also area. We have to find out the breadth, so let breadth of rectangular sheet equals to b meter centimeter, centimeter given, so we will write centimeter. Next, length of rectangular sheet that is equals to 35 centimeter and perimeter is given, so perimeter of rectangular sheet, rectangular perimeter formula 2L plus B and perimeter given that is equals to 100 2L plus B। 2 as it is, L is equals to 35, B as it is, इस साइड 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 35 प्लस B as it is, कटिंग here 51 50 35 प्लस B, ये इधर आके फिर से क्या हो जाएगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट equals to 15 centimeter. Now we will find the area of rectangular sheet, area of rectangular sheet. Formula is length into breadth. Length given 35 and breadth we have find out 15. 35 multiply 15. 35 multiply 15, 5 to 5 centimeter square answer. This is the area of rectangular sheet. Next is question number 5. The area of a square park is same as of rectangular park.
दो पार्क है यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर, दोनों का एरिया कितना सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। अब यहाँ पे एक तो स्क्वायर पार्क की साइड दे रखी है, इस साइड आपको रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दे रखी है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ फाइंड करनी है किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की। अब इसका मतलब मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लूँगी, जो स्क्वायर का एरिया होगा वही हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा, उसी को यूज़ करके हम लोग आगे ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक स्क्वायर था हमारे पास, राइट, स्क्वायर की साइड दे रखी थी उसने 60 मीटर, मतलब ये सारी हमारे पास 60 मीटर ही होगी, 4 साइड्स आर इक्वल। और दूसरा दे रखा है हमें रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ उसने दे रखी है आपको 90 मीटर, ब्रेथ हमारे पास नहीं है तो वो हमने भी लेट कर ली। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकाल लेंगे पहले, ये मेरे पास आएगा साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 60 इंटू 60, 3600 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसका एरिया इतना है तो इसका भी एरिया सेम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के, दैट मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये हो गया हमारे पास। अब लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी मीटर, breadth, sorry, length is given here, breadth of rectangular park B and length of rectangular park that is given 90 meter, and area of rectangular park length into breadth, area 3600 and length 90, B as it is 90, इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या होगा हमारे पास डिवाइड होगा, 0 से 0 कैंसिल, 40, ये आ गया हमारे पास 40 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड दिस इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये भी सेम आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर बनेगा, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एरिया बना था। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अब कहता ये पहली जो वायर थी वही पहले हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में थी जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन थी। अब कहता उसी को अगर रीबेंट मतलब उसी को अगर तोड़ मरोड़ के आपके पास इसको स्क्वायर बना दिया जाए तो अब स्क्वायर की साइड क्या रहेगी। इसका मतलब यहाँ से आप पेरीमीटर निकाल के जो पेरीमीटर इसका होगा वही पेरीमीटर स्क्वायर का होगा, उसी से हम लोग स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कर लेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, दैट मीन्स हमें इनका एरिया भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी फिगर ज़्यादा एरिया ले रही है। इन केस ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे दो बनेंगे हमारे पास केस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। लेंथ दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड breadth that is 22 centimeter. So perimeter that is 2L plus B. 2L is equals to 40 and this is 22. 2 multiply 62, 124 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया इन केस ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब अगर वायर का जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो पेरीमीटर इतना रहेगा, अगर लेंथ उसी लेंथ से स्क्वायर बनाते हैं तो पेरीमीटर तो उतना ही रहेगा। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया 24, तो ये पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, 4 इंटू साइड, तो 124, 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये साइड आ गई मेरे पास, कटिंग करेंगे, ये आ गया 31। सो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आई, 31 सेंटीमीटर। अब लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल की भी पता है, इसका स्क्वायर का भी हमें साइड पता चल गई। अब दोनों के एरियाज निकालने, क्योंकि लास्ट लाइन में उसने यही पूछा है, विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल्स टू 40 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 22, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, that is side into side, 31 into 31 multiply 961 centimeter square. So which figure encloses more area, square? So answer is square encloses more area. This is the answer of question number 6. Next is question number 7. The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. Breadth of rectangle 30 centimeter. Find its length. Also find the area of rectangle. ये क्वेश्चन सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं उसी के जैसे, यहाँ पेरीमीटर दे दिया, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ फाइंड कर लेंगे, पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा के उसके बाद एरिया फाइंड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी थी, तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन 130 सेंटीमीटर। कई क्वेश्चंस में हमने लास्ट में यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, आप यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख के ये 130 यहाँ लिख सकते हो। अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगी 2 इंटू एल प्लस बी, ये 130 एज इट इज 2, एल हमारे पास दे रखा है 30, बी हमारे पास हमने लेट किया है ये 2, इस साइड डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा आपके पास, सॉरी इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास डिवाइड होगा, ये आ गया 65, बी 30 इस साइड प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस, सो दिस इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ आ गई हमारे पास 35 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल्सो एरिया, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल equals to length into breadth. Length is equals to 30 given and breadth 35. Centimeter square. After multiplying 1050 centimeter square, answer. This is our question number 7. Last question of this exercise, question number 8. A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. कोई डोर जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है एक वॉल में फिट है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज दिस एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेथ दे रखी है वॉल की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वॉल दे रखी है, इसी में ये डोर फिट है। अब कहता है वाइट वॉश करना है किसको, सिर्फ वॉल को ही करना है, तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में से मैं इस डोर का एरिया क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास सिर्फ वही एरिया बचेगा वॉल का। पहले हमें वॉल का एरिया फिर डोर का एरिया, वॉल में से डोर क्या कर देना है माइनस, तो इसकी वाइट वॉशिंग का एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो एरिया है उसको 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा रेट आ जाएगा किसका, वाइट वॉशिंग। लेंथ ऑफ डोर गिवन, ब्रेथ ऑफ डोर 1 मीटर गिवन, एरिया ऑफ डोर, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि डोर हमारा रेक्टेंगल शेप में ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। सेम हम वॉल का फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ वॉल देन ब्रेथ ऑफ वॉल। लेंथ हमें दे रखी है वॉल की 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ 4.5 3.6, 4.5 मल्टीप्लाई 3.6
16.20 मीटर स्क्वायर। अभी ये मेरे पास वॉल का एरिया और ये डोर का एरिया, हमें सिर्फ वॉल को वाइट वॉश करना है तो डोर का एरिया उसमें से माइनस करना है। यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, एरिया ऑफ डोर एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ डोर, दैट इज 16.20 माइनस 2, 14.20 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया आ गया वॉल का। अभी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इक्वल्स टू 14.20 मल्टीप्लाई बाय 20। आप सिंगल अलग से लिख के भी कर सकते हो, यहाँ हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं तो यहाँ आएगा 284 रुपीज़, 284 आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 11.1 का। नेक्स्ट 11.2 हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।